Good morning class. It's our science video class 7 part 11. Students, in our previous video part 10 we discussed about some digestion process, how a digestion process occur in the human body as well as in the amoeba. Now we will discuss some further topics like nutrition process in frog etc. Before starting our chapter, students, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज करी थी, जो क्वेश्चन आंसर करे थे, सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक इन अ फेयर राइटिंग. ओके, सो हमने अपना चैप्टर यहाँ न्यूट्रिशन इन अमीबा तक कवर अप करा था, in which we studied how the digestion process occur in amoeba. एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं किस तरीके से कि अमीबा में न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है. स्टेप्स वही हैं हर ऑर्गेनिज्म में. पहले इंजेक्शन प्रोसेस, नेक्स्ट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and ingestion. These all steps are common for every organism, but the difference is ingestion process means intaking of food. Intake of food सब organism का सबका different होता है. Like frog, leech, kingfisher, some have a chewing, feeding, catching, sucking, siphoning, etc. Now, amoeba, it's a unicellular, it means single celled organism which lives in the pond having a cell membrane. Cell membrane means outer covering layer, nucleus or tiny bubble which is a vacuole in which the digestion occurs, or a food stored in the cytoplasm. तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया था प्रीवियस वीडियो में. एंड इट हैविंग अ फॉल स्पीड थ्रू विच इट मूव with the help of pseudopodia, and it also help in ingestion. Ingestion means intaking of food. So first ingestion में क्या था कि किस तरीके से जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल के पास जाता है एंड देन सराउंड द फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ pseudopodia and surround the food particle by forming small cavities called food vacuole. Here the food vacuoles formed in which the food stored, and after it the digestion occur in the food vacuole through the digestive juices. It means so many digestive juice will secrete and help in digesting that food. Now अब ingest हो गया, intake हो गया food with the help of pseudopodia. next फूड वैक्यूल फॉर्म हो गए वेयर द फूड स्टोर्ड. जैसे हमारा फूड जो वो ह्यूमन बीइंग में स्टमक में जाता है, ऐसे ही जो फूड वैक्यूल है वो यू हैव टू अज्यूम दैट फूड वैक्यूल इज द स्टमक ऑफ अमीबा. ओके, एंड इन दैट वैक्यूल द डाइजेशन इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन ज्यूस. नाउ अ फूड डाइजेस्ट हुआ, नाउ इट विल गेट एब्जॉर्ब थ्रू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. इट विल एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म. जो न्यूट्रिएंट होंगे अमीबा के वो जैसे ये डायग्राम शो करा हुआ है, साइटोप्लाज्म इज इन पिंक कलर. सो द होल न्यूट्रिएंट विल गेट एब्जॉर्ब इन दिस. जो हमें उस फूड से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड होंगे, हमने अपनी जो हमारे चैप्टर का बेसिक था हमने पढ़ा था कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट, all essential requirement, all essential needs which we get from food like carbohydrate, vitamins, minerals. ऐसे ही जो अमीबा है वो भी फूड से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा एंड इट विल गेट एब्जॉर्ब इन इट्स साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट आता है इवेशन. अब इसने फूड इनटेक किया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ. The next process is removal of the undigested food जिसकी हमें नीड नहीं है. It will excrete out. So what is digestion? Undigested food remain in the food vacuole. जिस फूड में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए हैं, अब वो मटेरियल तो वहीं प्रेजेंट है, सो इट हैज़ टू बी रिमूव्ड आउट एंड इट विल रिमूव्ड आउट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन. Okay,
So we cover the digestion or a nutrition process in the amoeba also. Next is nutrition in frog. अब frog में nutrition कैसे होता है? How process occur in the frog? Students, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि there are so many feeding habits. So what type of feeding habit does the frog show? It show catching. You can see in the picture frog catching insect. So the feeding habit of the frog is catching with its long stick tongue. If you observe how the frog catches its insect with the help of sticky tongue. स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. वो ऑर्गेनिज्म कौन सा? ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल कौन सा है, कौन सा लिविंग बीइंग है वो, और उसकी फीडिंग हैबिट क्या है. अगर आपको फीडिंग हैबिट पता होगा तो बाकी आप इजीली राइट डाउन कर सकते हैं कि डाइजेशन में सेम हुई है कि फूड डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन स्मॉल पार्टिकल्स. दैन एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है. फिर ईजेशन मीन्स रिमूवल आउट ऑफ फूड. रिमूवल आउट ऑफ फूड वो भी डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कहाँ से रिमूव हो रहा है. सो बिकॉज इंजेशन और ईजेशन इज़ अ डिफरेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. नाउ फ्रॉग की फीडिंग हैबिट क्या है? कैचिंग. कैच किससे करेगा? टंग से. सो द फीडिंग हैबिट इज द कैचिंग ऑफ द फ्रॉग. लाइक frog catch insect which are their food. Frog का food insect, so they catch their food along with the help of long sticky tongue which is attached to the front of the mouth. फ्रॉग अपना फूड कैसे इनटेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर टंग विच अटैच टू देयर माउथ, जो उनके माउथ से अटैच्ड होती है. नाउ व्हेन अ फ्लाइंग इंसेक्ट, कोई भी जब इंसेक्ट फ्रॉग के नियर आता है, इट कम्स नियर टू द फ्रॉग, सो इट इमीडिएटली थ्रो अ लॉन्ग टंग आउट लाइक इन द पिक्चर. व्हेन द इंसेक्ट, इट्स एन इंसेक्ट, इट्स अ फ्रॉग and it is the long sticky tongue of the frog. When this insect comes near to the frog, so it throws the long sticky tongue and catches that insect. So the feeding habit is catching. That's why it's called catching. Now it captures the insect and then roll back its tongue along with the insect into the mouth. नाउ जब ये फूड को कैच करता है, सो इट रोल्स इट टंग बैक इनटू द माउथ. वापस अपनी जो टंग है वो माउथ में कर लेता है विद द इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग इट और कैचिंग इट. नेक्स्ट, दिस इज हाउ फ्रॉग कैप्चर इंसेक्ट. इस तरीके से जो फ्रॉग है वो अपना फूड कैच करता है, फूड इनटेक करता है. देन द फ्रॉग स्वॉलो द इंसेक्ट. Swallow means निगलना. Finally the frog swallow the insect and digest in a well developed digestive system with the help of digestive juice. अब फ्रॉग ने फूड इंजेस्ट कर लिया, बाकी फिर वही प्रोसेस आ जाती है कि डाइजेशन किस तरीके से होता है. डाइजेशन स्टमक में जाके होगा. फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट मीन्स जो स्टमक है वहाँ पे फूड ट्रांसफ़र होगा, means insect transfer होगा. They will get digest with the help of digestive juices and then it will removed out through the egestion process. So it is the nutrition process in the frog, how the digestion occurs, how it catches the food. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. अभी हमने पढ़ा था कि होल डाइजेस्टिव सिस्टम, कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो फूड को इनटेक करते हैं, फिर स्टमक में कैसे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर मेजर कंपोनेंट लाइक प्रोटीन का फॉर्मेशन, फिर इजेशन. ये था हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्टिंग में. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन कैसे होता है. न्यूट्रिशन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से
ऑर्गन्स हैं दे विच आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी तो सिर्फ पूरा हमने सिस्टम पढ़ा था कि इजेशन में, डाइजेशन में किस तरीके से फूड का ब्रेक डाउन। इसमें हम पढ़ेंगे वो कौन से ऑर्गन है, किस तरीके से, हाउ दे डाइजेस्ट द फूड। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम, द होल, इट इज़ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम और द ह्यूमन बीइंग विच इंक्लूड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेके एनस तक होती है, इट इज़ नोन एज होल एलिमेंट्री कैनाल। हम उस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं एंड इट इज़ 21 फीट लॉन्ग। इसमें एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, लाइक माउथ से लेके जो हमारा, यू हैव टू, आपको अपने ऊपर एज्यूम करके इसको समझना होगा, माउथ से लेके एनस तक जो होल डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स एन एलिमेंट्री कैनाल विच इंक्लूड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड मीन्स जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है फिर जो वहाँ पे जूस सीक्रेट होते हैं लाइक बाइल, जूस, HCl, सो विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ये 21 मीटर लॉन्ग होती है जिसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो इंक्लूड होते हैं, लाइक बकल कैविटी। बकल कैविटी इज व्हाट? इट्स अ माउथ कैविटी। Buccal cavity, it's a mouth cavity. Next is pharynx, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. These all are included in alimentary canal, and we will discuss one by one in brief in next video.